हाय डियर स्टूडेंट्स, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਰਦਰਫੋਰਡ ਦੇ ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਹੋ ਹੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਆ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਫਾਈਨਾਈਟ ਜਾਂ ਫਿਕਸਡ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ। ਜੋ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਕਲੋਜ਼ੈਸਟ ਅਪਰੋਚ ਸੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਦੈਟ radius of gold nucleus is this one 4.1 into 10 raised to power minus 14 meter। ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਜਾਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਸ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਵੋਲਿਊਮ ਆ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦਾ, ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਨਿਊਕਲੀਅਸ that is directly proportional to number of nucleons। nucleons ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, mass number, or we can say that directly proportional to mass number। v that is directly proportional to a mass number ਨੂੰ ਅਸੀਂ a ਨਾਲ represent ਕਰਦੇ ਹਾਂ। suppose ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ that radius ਹੈ ਜੋ nucleus ਦਾ that is r, capital R that is equal to radius of nucleus। ਤਾਂ volume ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, जो न्यूक्लियस है दैट इज ऑल्सो अ स्फीयर। स्फीयर का वॉल्यूम की होंगे 4/3 पाई आर क्यूब। तो असी बोल सकते हैं 4/3 पाई आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू ए। हुन असी आर क्यूब की वैल्यू अगर फाइंड आउट करना चाहिए, आर क्यूब आ 4/3 पाई उधर शिफ्ट हो जाएगा, डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू ए। 3 ऊपर चला गया, 4 नीचे आ गया, नाल पाई। ठीक है जी। तो हुण आ जो टर्म है दिस ऑल इज ऑल्सो अ कॉन्स्टेंट 3/4 पाई। तो असी बोल सकते हैं आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू ए और आर इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू ए रेज टू पावर 1/3। इधर पावर 3 और इधर जाके की हो जाएगी 1/3। ठीक है। हम जो प्रपोर्शनैलिटी है साइन असी रिमूव करांगे, साइन नू रिमूव किया और असी लगाता जनरली एक कॉन्स्टेंट, दैट कॉन्स्टेंट इज आर नॉट ए रेज टू पावर 1/3। और जो आर नॉट है यदी वैल्यू एक फिक्सड वैल्यू है, दिस इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट 1.1 इंटू 10 रेज टू पावर -15। एक ही है, दिस इज द रेंज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। ਇਹ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੋਰਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਯੂਨਿਟ ਰੇਡੀਅਸ। ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਯੂਨਿਟ ਰੇਡੀਅਸ। ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਡੈਂਸਿਟੀ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਡੈਂਸਿਟੀ फाइंड आउट करनी है। ਅਸੀਂ ਅਸਿਊਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ दैट जो मास होएगा न्यूक्लियस का दैट मास इज ए, और असी इस मास दे विच मास ऑफ इलैक्ट्रॉन नू कंसीडर नहीं कर रहे। मास ऑफ इलैक्ट्रॉन इज नॉट कंसीडर्ड। जेकर असी बोल दिए कि मास ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, मास ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम दैट इज इक्वल टू कैपिटल ए, और फिर मास की बन जाएगा कैपिटल ए एम यू। ठीक है। और 1 AMU की वैल्यू कितनी होंगी है, दैट इज इक्वल टू 1.6605 इंटू 10 रेज टू पावर -27 kg। इट मीनस जो साडा मास ये की बन जाएगा ए इंटू AMU की जगह ते असी पुट कर देंगे वैल्यू, दैट इज इक्वल टू 1.6605 इंटू 10 रेज टू पावर -27 kg। अगर असी मान लेने कि कैपिटल आर दैट इज रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का रेडियस आ, तो वॉल्यूम की आ जाएगा साढ़े कोल, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस 4/3 पाई आर क्यूब। आर की जगह ते असी वैल्यू पुट करांगे जो असी फाइंड आउट की, दैट इज 4/3 पाई आर नॉट ए दी पावर 1/3 दा क्यूब।
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ 4/3 ਪਾਈ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼, ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ r0 ਦਾ ਕਿਊਬ, a ਦੀ ਪਾਵਰ 1/3 ਹੈਗਾ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕਿਊਬ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਰਮ ਦਾ ਕਿਊਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਟਰਮ ਦਾ ਕਿਊਬ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਲਿਖਿਆ 4/3 ਪਾਈ r0 ਕਿਊਬ, ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਤੇ ਆ 1/3 ਕੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ a। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ r0 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1.1 ਇੰਟੂ 10⁻⁻15। ਠੀਕ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ 4/3 ਪਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਫਿਰ r ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1.1 ਇੰਟੂ 10⁻⁻15 ਦਾ ਕਿਊਬ ਇੰਟੂ a। ਅਸੀਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਡੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਨਿਊਕਲੀਅਸ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਡੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਨਿਊਕਲੀਅਸ, ਡੈਂਸਿਟੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਸ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਵੋਲਿਊਮ, ਮਾਸ ਆਫ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਓਵਰ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਨਿਊਕਲੀਅਸ। ਮਾਸ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਸੀ a ਇੰਟੂ 1.6605 ਇੰਟੂ 10⁻⁻27 ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ ਵੋਲਿਊਮ ਕਿੰਨਾ ਫਾਈਂਡ ਹੈ 4/3 ਪਾਈ 1.1 ਇੰਟੂ 10⁻⁻15 ਦਾ ਕਿਊਬ ਇੰਟੂ a ਨਾਲ a ਕੱਟ, ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਫਿਰ 1.6605 ਇੰਟੂ 10⁻⁻27 ਇੰਟੂ 3 डिवाइड बाय 4 पाई इंटू 1.1 इंटू 10⁻⁻15 दा क्यूब, जो आ 4/3 सी इस टर्म का रेसिप्रोकल हो गया। और इस सारी कैलकुलेशन पाई की वैल्यू असीं 3.14 पुट कर देंगे। पुट करन तो बाद साडे कोल आंसर आ जाएगा 2.97 इंटू 10⁻117 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। कितना आंसर आ गया 2.97 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। डेंसिटी की आई है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10⁻17। इन्नी ज़्यादा डेंसिटी का मतलब की है कि जो न्यूक्लीयस है बहुत कंपैक्ट है। कंपैक्ट वर्ड तो मतलब इत्थे की है कि बहुत ज़्यादा मास है थोड़े जे वॉल्यूम दे विच, थोड़े जे रीजन दे विच बहुत ज़्यादा मास है, सो इट इज़ वैरी कंपैक्ट। और एक्सपैरीमेंट्स ने की दसिया कि जो मैक्सीमम मास है सेंटर विच है ते जो इहदी कंसनट्रेशन है मास मैक्सीमम सेंटर विच है, इट मीनस की होएगा डेंसिटी मैक्सीमम सेंटर विच होएगी। जिद्दां जिद्दां असीं कॉर्नर वल मूव करी जाने सेंटर टू दिस वन कॉर्नर्स वल, तो साडी डेंसिटी घटनी स्टार्ट हो जाएगी। जो डेंसिटी का रिलेशन फाइंड आउट किया है तो किते ए तो नहीं आया, इट मीनस डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर।